Hi guys, I'm Reddy Desai. Today I'm here to have a talk with our guest Tehseen. So Tehseen, welcome to Travel. Thank you. So Tehseen is a passionate trekker, mountaineer, cyclist, lawyer, and much more. So she has done many high altitude treks, and one of them is Kilimanjaro, which is the highest peak in Africa. And even she has done Kanyakumari to Khardungla bicycle expedition, and she has done more than 10 adventurous treks. Like it includes paragliding and basic and advanced mountaineering. So you have done lots of trekking and adventure expeditions. So what inspires you most? So it's like a big story, huge story. What inspired me was my first trek, which I went in 2009. It was Sarkundi Pass in Manali. So my father sent me and my sister for the first time, and it was such a good experience that we decided कि okay, from every next year we'll be doing one trek at least a year. So that's how I started, and once I did one thing, I got to know 10 other things, and I went to do 10 other things. I got to know like more than 100 things. जैसे आपने बहुत हाई अल्टीट्यूड ट्रैक्स किए हैं विच वाज द मोस्ट हाई अल्टीट्यूड वाला ट्रैक So I've done 3 to 4 high altitude treks. The first one was Friendship Peak, और उसमें ये था कि it was quite easy, trackable था. So we started from Solang Valley. It's in Manali. वहाँ से हमारा फर्स्ट कैंप था ब्यासकुंड में, एंड देन वी वेंट टू लेडी लेक. वहाँ पे हम एक दिन एक्लेमेटाइज किए, और एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड डूइंग द लोड फेरी. लोड फेरी इज़ कि जब आप एक हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन कर रहे हो, आपको आपका थोड़ा सामान जाके हायर कैब में शिफ्ट करना पड़ता है, एंड देन यू कम डाउन अगेन, एंड देन यू टेक योर लगेज वंस अगेन, एंड इट हेल्प्स यू इन एक्लेमेटाइजेशन एज वेल. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, एंड उसमें लेकिन हमारा समिट नहीं हो पाया था. उसमें समिट नहीं हो पाया था ड्यू टू द वेदर इश्यूज. सो दिस इज़ द वन थिंग विच वी नो एवरी टाइम कि भाई वी कांट, दैट थिंग इज़ नॉट इन आवर हैंड, और वेदर वाली सिचुएशन आती रहती है. सो द पीक वॉज जस्ट 200 मीटर अहेड ऑफ अस, बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू डू इट. After that, I planned for Hanuman Tibba. So that peak is just in front of Friendship Peak. तो जब मैं Friendship Peak कर रही थी तब मैंने देखा था कि ओके ये एक peak है, and it is so mesmerizing, so good, but it's a technical one. When I say technical, it means we need to use the equipments. With the help of equipments we climb, and we need high altitude porters, and more than one guide, and we need a good team. So I planned for it, and what happened, the weather got bad in the first day only, so we need to cancel that expedition. And then we had one alternate option, which was Mount Unam. It was there in Manali Leh highway. There's a place called Bharatpur, so it starts from there. Unam is a different kind of peak. It is above 6,000 meters. The terrain is not much of an issue, but the altitude is the issue. So आप एक बार में इतना altitude climb नहीं कर सकते हो. आपको धीरे धीरे अगेन लोड फेरी करना पड़ता है, कुछ दिन वहाँ बेस कैंप में रहना पड़ता है, एंड देन यू क्लाइंब इट. दैट वाज अ टीम ऑफ 8 पीपल, एंड उसमें हमारे 2 ऐसे मेंबर्स थे जिनको थोड़ी मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी, वो हमारे साथ नहीं आ पाए थे. तो द 6 of us continued and did that Unam peak. People are very curious to know about your cycling expedition. So No one let's is start with bothered about the that. mountaineering thing. No, no, not like that, Sorry, I'm just but all the joking. comments are about, yeah. Okay. So, So, So Kanyakumari to Khardungla, how was that journey? um, it was incredible. Like I can't define in one word. तो 10 ऐसी चीज़ थी जो दिमाग में थी कि भाई करना है इसे,
पिछले कुछ सालों से सोच रही थी कि करना है, ठीक है. Then I planned it in 2018 but was not able to do due to some reason. Then in 2019 I finally decided कि भाई इस साल try करते हैं implement करने को. So there were few conditions which were on me कि भाई you have to keep a support vehicle behind just in case in time of emergency. Although we never used it, we used to keep our luggage there and all the necessary items. So we started from Kanyakumari. It is the southernmost tip of India, and we planned to do it till the highest motorable road in the world, which is in Leh. It's Khardungla. So it's approximately 4,000 kilometers, and the calculations which we made, we thought कि okay, we will be doing 120-130 kilometer per day, so that when we reach the mountains कि हमें इतना effort ना लगाना पड़े. We would be doing some 50 kilometers daily. So when we started, it was really nice. We started from Tamil Nadu, and then we went to Karnataka, then we went to Telangana, Andhra Pradesh. So these southern states were really nice. I mean, that was the initial time when the summer started. We started in June 14, yeah. तो तब वहाँ पे काफ़ी सारी रोड अच्छी थी, रोड खाली भी हुआ करती थी, ट्रैफिक इतना नहीं हुआ करता था. एंड द गुड फूड वी यूज्ड टू गेट इज लाइक डोसा विच इज़ रिच इन कार्ब्स, सो इट यूज्ड टू हेल्प अस. फिर उसके बाद महाराष्ट्र आया. दैट इज़ व्हेन हमें मतलब बारिश भी मिलने लगी. देयर वर 2 to 3 days when we continuously were cycling in rain. And then we took our first break in Nagpur, like the one whole day rest, क्योंकि एकदम से बॉडी भी इतनी काम कर रही है, वी नीड सम डे रेस्ट. एंड देन वी डिसाइडेड कि हम अपना नेक्स्ट रेस्ट दिल्ली में लेंगे. सो बीच में एमपी आया, यूपी आया, एंड देन वी रीच दिल्ली. देन वी थॉट कि ओके, आई थिंक वी कैन पुश मोर एंड वी कैन टेक द रेस्ट इन मनाली. बट जबकि गर्मी बढ़ रही थी, क्योंकि दिल्ली आते ही पोल्यूशन इतना था, गर्मी इतनी थी. बट देन अगेन कुछ अलग ही जोश था. व्हेन वी रीच द इंडिया गेट, तब लगा कि यार एक प्राउड फीलिंग आई. वी हैव कंप्लीटेड लाइक 2900 किलोमीटर. तो एक मेंटल सपोर्ट भी था और एक जोश भी था कि नहीं, करना है, कर सकते हैं, क्योंकि वी मेड अ टारगेट ऑफ 40 days. Then we started from Delhi and it took us another 4 to 5 days to reach Manali. और दिल्ली के बाद से मतलब चंडीगढ़ से आगे जो भी रास्ता था वो टेरेन चालू हो गया था कि भाई अब चढ़ाव भी है, अप हिल भी है, डाउन हिल भी है. वी हैव टू बी अटेंटिव इन बोथ द रूट्स. हम जैसे भी जाएंगे रोड पतली हो जाएगी, ट्रक्स भी होंगी, गाड़ियाँ भी होगी. एंड वहाँ पे मतलब हर चीज़ का ध्यान रखते हुए कि एल्टीट्यूड भी गेन कर रहे तो तबीयत अच्छी रहे. वहाँ पे हम 3 बजे से आप बाद चला नहीं सकते साइकिल, क्योंकि मौसम बदलता रहता है, ये सारी चीज़ें. So when we reached Manali, we took rest for 1 day, complete rest. And then we thought कि मनाली से जो लेह का रास्ता है, that we can easily do in 7 days, क्योंकि अब तक का जो हमारा परफॉर्मेंस था वो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था. एंड दैट वाज रियली नाइस कि भाई ठीक है, इतना प्लान किए थे, इतना हो रहा है, इतना प्लान किए थे. सो वी वर इवन कॉन्फिडेंट कि वी वुड बी एबल टू डू इट विद इन 7 days. नाउ मनाली से खारदुंगला का जो रास्ता है ना, वो ऐसा रास्ता है कि एवरीवन वांट्स टू गो टू दैट प्लेस सम और द अदर डे इन देयर लाइफ, इधर इन बाइक और इन कार, ऑन बाइसिकल. इट्स सो ब्यूटीफुल. वहाँ पे एक अलग ही टाइप की फीलिंग आती है कि आप कोई अलग ही जगह पर आ गए हो. इतने अच्छे लगते हैं वहाँ के पहाड़. तो दैट वाज द मेन थिंग व्हिच आई वाज वेटिंग फॉर थ्रू आउट माय 4000 किलोमीटर जर्नी. सो व्हेन वी इससे पहले भी यू हैव डन नो मनाली टू लेह? No, I have done cycling within Leh. That was for a week. I have done cycling in Kullu, which was Jalori Pass. So these small expeditions I have done, which was for 5 to 7 days. But this was the first one, the big one. Yeah. तो मनाली से निकलते सबसे पहले जो आता है वो है रोहतांग पास. यहाँ पे एक सिनेरियो हुआ था जो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी. So that was one of the deadly experiences for me.
व्हाट हैपेंड वाज कि हम निकले थे वहाँ से, और पहाड़ों में तो यूजुअली रोड वर्क चलता रहता है, तो कुछ तो काम चल रहा था वहाँ पे रोड का, तो दोनों साइड से उन लोग ने गाड़ियों को रोक रखा था। एंड वी वेटेड फॉर 3 hours and we reached Madi. There is a place called Madi which is before Rohtang, and they have a place where we can stay. So we reached there around 5:30. We took a break for half an hour there. So one thing which I should have done is to decide that we should stay there only in Madi. But then I thought कि okay, no, we can do Rohtang in 1 or 2 hours. The mistake which I did कि I knew कि यार पहाड़ों में 3 बजे के बाद नहीं चलाना है, but I still went. And once we reached Rohtang, it was all dark, it was cold, and I didn't realize, but my body was dehydrated. So now the point is अब तो पहुँच गए टॉप में. So that is the pass. That is around more than it is 13,000 feet. Yeah. So अब उसके आगे जाना है, पीछे जाने का तो मतलब नहीं. आगे जाना है तो we have to go 20 kilometer ahead. 20 kilometer ahead, and the road is all bad after Rohtang. कीचड़ है, गड्ढे है, you can't see. और वहाँ से हम धीरे धीरे जा रहे हैं. मतलब तब तक तो मेरी हालत ज़ीरो हो चुकी थी, हिम्मत नहीं बची थी कि भाई आगे कैसे जाना है, कैसे करना है. ठीक है, अब चल रहे. पीछे जो कार थी उसको बोल दिए थे कि हेडलाइट चला के रखो. हमने अपनी हेड टॉर्चेस निकाल ली थी, 2-3 जैकेट जितने थे पहन लिए थे, बिकॉज इट वॉज सो डैम कोल्ड कि भाई अब तो सिर्फ ब्रेक लगाने थे डाउनहिल में, लेकिन उंगलियां काम नहीं कर रही है. जैसे तैसे करके वी रीच देयर बाय 10 o'clock, and that place is called Khoksar. That is the nearest place if you want to go ahead of Rohtang where you can stay. ठीक है, सो वहाँ पे पहुँचे, करे वगैरह, खाना वगैरह खाए करके 12 बज गए. Now the next day we took things little easy कि भाई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं करते, we are in mountain, तो हम थोड़ा आराम से निकले. चलो 9-10 बजे तक. Once we started I realized कि ओके, मेरी जो एनर्जी मैंने लगाई थी पिछले 25 दिन तक, 30 दिन तक, तो आई एम नॉट इन दैट एनर्जी एनी मोर. द प्लेस विच आई केप्ट ओके कि इसमें मुझे फुल एनर्जी लगानी है, बट देन आई वॉज गेटिंग वीक एंड आई वॉज कफिंग अ लॉट. मे बी आई वुड हैव कैच कोल्ड when I was there top in Rohtang at 8 p.m. So we reached a place called Jispa, and then I decided okay मैं next day complete rest लूँगी, देखते क्या होता है. I took rest. I went to see the local doctor there. लेकिन पता चला कि भाई फीवर आ चुका है. It was 101 degree. Okay, so one more thing. When you are in mountains and you get sick, so your recovery gets really slow. Even if it's a wound, if you get some cut or something, it will take a lot of time to heal. So what is the best solution when you are mountains and you're sick is you should lose the altitude. But then there was no point going back, so we decided कि यहीं पे हम rest करते हैं. So I have not mentioned about my cycling partner Pankaj. So he was in I was about to ask you that. Yeah, he was in a good condition. He was doing it really well. और उसको शुरुआत में परेशानी हुई थी कन्याकुमारी से जब स्टार्ट किए थे, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज डूइंग दिस साइकिलिंग. And that too from K2K. हाँ, तो उसके लिए तो मतलब उसके स्टेमिना की बात थी, एंड ऑफ कोर्स ही स्ट्रॉन्गर. तो हुआ ये कि आई टोल्ड हिम कि यार मेरे वजह से मत रुक, निकलना है तो यू कैन गो अहेड. सो ही वाज लाइक कि नहीं, टीम के साथ आए हैं और हमने हर चीज़ साथ में की है, तो यू गेट बेटर एंड देन वी कैन कंटिन्यू. देयर इज नथिंग लाइक दैट कि भाई अगर 40 दिन से ज़्यादा भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ठीक है, वी स्टेड देयर फॉर 3 days. फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया कि थोड़ी सी हिम्मत लगे, लेट्स कंटिन्यू, हम उसको धीरे धीरे करके मे बी 7-8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे. वी वुड रीच ले बाय 7 to 8 days. So the day we started, I was like my energy was zero. जितना मैं कन्याकुमारी से निकलते टाइम एनर्जी थी उससे भी कम थी. मतलब कि अब साइकिलिंग करना तो दूर की बात है. So I was feeling really bad कि यार I'm getting such a beautiful view, but then I'm getting trouble in while cycling.
So Yeah. what we did, we took another 2 days rest and then we continued. So we reached Leh after 4 to 5 days, and now this route has many high altitude passes like Nakila, Tanglangla, Lachungla. So whatever pass we used to reach, so first we have to climb all the way till we reach that pass, and then we get a good amount of downhill where we can enjoy. So what we need to make sure is कि जब भी हम उस पास में पहुँचे, उस एल्टीट्यूड में पहुँचे, वी आर रीचिंग देयर बिफोर 3, लाइक 12 से 3 बजे के बीच में पहुँच जाए, क्योंकि 1 या 2 बजे के बाद वेदर इज़ अनप्रेडिक्टेबल. तो अगेन दिस थिंग हैपन व्हेन वी रीच तांगलंगला. वी रीच अराउंड 2 to 3 PM. अब उसके बाद हमें जाना था नीचे, विच वॉज कम्प्लीट डाउनहिल, लाइक 40 किलोमीटर डाउनहिल था. तो ऑफकोर्स वी वुड बी इंजॉइंग दैट, बट द थिंग इज़ कि अब वो ठंडी आ चुकी है, अब फिर से ब्रेक नहीं लग रहे हैं. देन वी वेटेड फॉर अ वाइल, फिर हमने क्लोथिंग बढ़ाई, ग्लव्स वगैरह और पहने, एंड देन वी स्टार्टेड. तो आई रिमेंबर द वे टू तांगलंगला. आई लिटरली गॉट टीयर्स, बट मैं रोई नहीं. लेकिन वो इतनी मुश्किल चीज़ है ना, मतलब of course you enjoy, but then I was not in a good condition. So but I was feeling good कि okay ठीक है कर लिया, but साथ में रोना भी आ रहा है, इतनी मुश्किल से किया. But fine. So I reached Leh, and then we were supposed to take 1 day break as well, क्योंकि लेह से बाद आता है खारदुंगला. लेह से खारदुंगला है around 43 किलोमीटर, and that is all uphill. So अब यहाँ पे ये हुआ कि हमने सोचा यार ऑलरेडी इतना हमने मतलब दिन इन्वेस्ट कर चुके हैं और मेरी हेल्थ के वजह से, एंड टेकिंग अ ब्रेक वुड बी बेनिफिशियल. बट अभी मैं उस प्रोसेस में थी कि हाँ मैं इतने दिनों से साइकिलिंग कर रही हूँ, सो आई कैन डू. नाउ दिस रूट ले टू खारदुंगला, आई हैव डन इट बैक इन 2018. मैं ले गई थी ले मैराथन के लिए, तो तब मैंने वहाँ पे साइकिल रेंट पे लिया था, तब मैंने किया था. दैट टाइम आई वॉज एबल टू डू इट ईजिली. सो आई वॉज वेरी मच श्योर कि यार इस बार तो हो ही जाएगा, एक बार कर चुके हैं. बट आई फॉरगॉट द थिंग कि ठीक है मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. वी स्टार्टेड एंड देन वी रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड साउथ पुलू. साउथ पुलू तक आई थिंक हमारा 28 किलोमीटर हो जाता है, 26 से 28 किलोमीटर हो जाता है, और बाकी 14 या 15 किलोमीटर बचते हैं खारदुंगला तक. तो उसके बाद जो रोड आती है वो है 2 किलोमीटर तक अच्छी, और उसके बाद 12 किलोमीटर की रोड पूरी ख़राब. मतलब पूरे रास्ते में जब हमने चालू किया था कन्याकुमारी से, कहीं पे भी रोड की दिक्कत नहीं थी. बीच में MP UP साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बाकी जो रोहतांग के बाद होता है वो तो है ही, वो रोड बनती रहती है, वो रोड हर साल बनती है, हर साल ख़राब होके. बट दिस रोड स्पेशली इट्स ऑल अपहिल, और बीच में बारिश चालू हो गई, और मेरी जो साइकिल है उसमें सस्पेंशन नहीं है, इट्स अ टूरिंग बाइक. तो मुझे और दिक्कत आ रही थी कि हर एक गड्ढा फील हो रहा है. तो वहाँ पे भी मैं बहुत बार रुक रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी. अब ऐसा लग रहा था कि यार इतना कर लिया है, ये करना पड़ेगा. वो एक वाली फीलिंग आ गई दैट आई हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड. बट देयर वाज समथिंग विच वाज मेकिंग मी कि भाई गिव अप, लाइक छोड़ दे, अब इतना सा नहीं बन रहा है, छोड़ दे. बट बिकॉज क्योंकि मैंने पूरी एनर्जी लगा चुकी हूँ अब. सो आई यूज़ टू वेट एट वन प्लेस, देन आई यूज़ टू थिंक कि क्या करूँ. तो जो पंकज था वो भी आगे जाता तो था थोड़ा, लेकिन फिर रुक जाता था, बिकॉज यूज़ टू सी कि मैं भी पीछे हूँ. एंड दैट वाज द लास्ट डे, दैट वाज द फाइनल डे कि भाई ये वी आर अबाउट टू रीच खारदुंगला. तो ही वांटेड कि भाई करे तो दोनों साथ में करे, एंड ही वाज फुल ऑफ एनर्जी ना. मतलब कि उसका बस चलता था, वो तब तक पहुंच भी जाता, रिटर्न आता मैं उसको तब भी बीच रास्ते में ही मिलती. सॉरी. तो धीरे धीरे करते रहे, एंड यू कैंट इमेजिन आई टुक 5 hours फ्रॉम साउथ पुलू टू रीच खारदुंगला. इट इज़ जस्ट 14 किलोमीटर, बट आई टुक 5 hours. But That's we fine. reached. Okay, we reached. एंड ऐसा है ना कि मतलब इतने सालों से सोचा था करना है, पूरी जर्नी में सोचा था करना है, एंड वंस यू रीच यू रियलाइज कि ओके हो गया,
एंड देन यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग कि यार ये सही में हो गया, एंड देन यू डोंट रियलाइज ओके यू हैव डन दिस, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि मैं हमेशा डेस्टिनेशन का सोचती रही, बट इट्स द जर्नी विच आई शुड काउंट. ईच एंड एवरी डे आई वॉज मेकिंग अ प्रोग्रेस. आई मीन माई ऑल द टाइम आई वॉज थिंकिंग अबाउट खारदुंगला, but each day was an achievement. Each day I was reaching the place I decided to. हर दिन 120 किलोमीटर करना, 130, 140, itself is an achievement. तो मे बी वो 40 दिन हो, 45 दिन हो, 47 डेज हो, जो भी हो. तो हमने जो साइकिलिंग की थी, साइकिलिंग डेज ऑफ 40, बट इंक्लूडिंग द रेस्ट डेज एंड एवरीथिंग 49 डेज हो गए थे हमें. हाँ. अमेजिंग. क्या ही बोलूं मैं. आई मीन आई फोकस्ड अ लॉट ऑन माउंटेन वाला रूट, क्योंकि ऐसा नहीं कि दूसरा रूट खराब था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमने सेंट्रल रूट लिया था. सेंट्रल रूट बिकॉज दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, और उसमें ज़्यादातर हाईवे ही था. हाईवे में चलाना इज़ अ डेंजरस थिंग, लेकिन क्योंकि कार पीछे थी तो हमारे पास हमेशा एक सेफ्टी थी कि ठीक है, वी आर नॉट इन द डेंजर जोन. और बीच में भी काफ़ी अच्छे लोग मिलते रहे, सबसे मुलाकात होती रही. जब एमपी आया तो एमपी में काफ़ी पहचान के लोग मिले. तो वेन एवर वी यूज टू रीच द सिटी, दे यूज टू बी रेडी विथ ऑल दी माला एंड डूइंग द वेलकम. ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है, बट ओके, बट वी आर टायर्ड, वी हैव रीच्ड अ प्लेस, and then we know कि okay there is someone who to greet us, so we have to be happy, we have to be energetic that time as well, because we are the face who are inspiring others, and people are really happy to see us कि यार सही में साइकिल में क्यों, क्या है रीज़न. we used to get such reactions from people. Yeah. Amazing, so proud of you, Tehsin. Like literally, जो तहसीन को मैं मिली थी 5 years back and this Tehsin is a huge difference. Of course, next I want to ask you about Kilimanjaro. Okay. So, yeah, just share your whole experience. So, Kilimanjaro, as you all know, there are 7 continents and each continent has a highest peak. It's called 7 summits. So, I mean हर एक माउंटेनियर का ड्रीम होता है कि भाई 7 summits करना है. जैसे एशिया का एवरेस्ट है, वैसे अफ्रीका का जो हाईएस्ट है वो किलिमंजारो है. It is, I would not say easy, but not difficult as well. It's a trekkable peak. वहाँ पे ये है कि उसके 5 से 6 रूट है जो आप कर सकते हो. The main problem in climbing that problem is the acclimatization again, क्योंकि आप जहाँ पे बेस पे रहते हो उसकी हाइट रहती है 800 मीटर, एंड उसका जो समिट पॉइंट है उसकी हाइट है 5800 मीटर. सो इट मीन्स विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 days आप 5000 मीटर क्लाइंब कर रहे हो, विच इज़ नॉट अ ईजी टास्क, क्योंकि भले ही वहाँ का टेरेन ईजी है, इतना टफ नहीं है क्लाइंब करना, ट्रेकेबल रूट है, बट एक्लेमेटाइजेशन 5 दिन में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो द रूट विच आई टुक इज़ कॉल्ड मचामे रूट. तो दिस वॉज अ ट्रैक विच वॉज माई सोलो ट्रैक. मैं इसमें अकेले गई थी, बट वहाँ की जितनी कंपनीज़ है वो सारी आई मीन काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. मैं उसमें गई थी जो ज़्यादा महंगा नहीं है, बट वो ज़्यादा महंगा नहीं है, उसमें भी जाके पता चला कि इतनी फैसिलिटीज़ है इनकी. आई मीन व्हेन आई डू ट्रैक्स इन हिमालयस, आई नेवर सॉ दैट मच कंफर्टनेस. बट ठीक है, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हर कंट्री से काफ़ी लोग आते हैं किलिमंजारो करने. किलिमंजारो एक अभी तो डेड वोल्केनो, इट्स नॉट एन एक्टिव, इट्स इनएक्टिव नाउ. तो द गुड पार्ट इज़ कि उसके आसपास और कोई पहाड़ नहीं है, वो एक अकेला पहाड़ है, एंड दैट्स वाई इट मेक्स द माउंटेन इन्वायरमेंट रियली विंडी. वहाँ पे काफ़ी विंड चलती है. सो पहले के 4 दिन क्या रहता है कि हम क्लाइंब करो उतरो फॉर एक्लेमेटाइजेशन, और रूट भी ऐसी है. देन द लास्ट डे, समिट डे, वहाँ पे अगेन फिर हमें रात में निकलना पड़ता है, और
उस दिन का ट्रैक थोड़ा सा लंबा है। आई थिंक कुछ 6 घंटे लग जाते हैं समिट पहुंचने पे। और इट्स मेंट कि आप टॉप पे जब पहुंचने वाले हो या टॉप पे पहुंच के आप सनराइज देखो, दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है उसका। हुआ क्या था कि वहाँ पे मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, इन द सेंस माई स्टमक वॉज नॉट गुड एंड आई प्यूक थ्राइस while going to the summit. But the good part is my guide was always there with me. Or anyhow, I did complete it. It is not so difficult, but yeah, I faced my own, like I had my own issues. लेकिन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ issues होते हैं, किसी को मे बी environment के होते हैं, किसी को personal health problem होती है, या किसी के लिए वो जो इतना लंबा डिस्टेंस है वो एक दिन में करना मुश्किल हो जाता है। आई मीन कई लोग हैं जो उसको बहुत इजी माउंटेन समझते हैं कि कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इट इज़ इजी, बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे लिए वो पहला ट्रैक था जो इंडिया के बाहर था, तो आई सॉ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर। या So, how do you made yourself like mentally and physically strong for such expeditions? okay, so like the first thing is the focus. If you are focused about it, like if I made a goal, okay, I want to reach Khardungla, okay, I want to reach the top of this mountain, the top of that mountain. So whatever it takes, I will be always pushing myself. If not physically, if I'm tired physically, I'll be pushing myself mentally. So that is which is important. The first thing is focus. The second thing I would say, to have some patience. I mean, it's really important in mountains. It's not about waiting. It's about observing your attitude in mountains. Because आप जब पहाड़ों में हो तब आप ये सारी चीज़ें शो ऑफ नहीं कर सकते हो कि भाई what are the things you have in your life. It's your nature. It's a human which can be of help to one another, and you know that better. कि भाई पहाड़ में हर कोई रियल रहता है, तो इट हैज़ टू बी अ टीम। हमें एक तरीके से पेशेंटली काम करना पड़ता है कि भाई पता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, सो कीप इट इन योर माइंड कि इतना टाइम लगेगा। इट विल टेक 5 days टू रीच द समिट, ओके, बी रेडी। सो थिंग्स हैपन्स लाइक कि पीपल आर गेटिंग इरिटेट कि भाई नीचे जाना है, अब घर जाना है वापस। इट हैपन्स, मतलब जितने जोश से लोग आते हैं ना ट्रैकिंग करने, उतने जोश से उनको मन भी करता है कि नहीं अब तो घर जाना है, अब नहाना है। फिर ऐसे 10-10 दिन हो जाते हैं, लोग नहा नहीं पाते हैं। और तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो उसमें पेशेंट रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि वेदर ख़राब हो जाए एंड देन समवन वुड बी लाइक कि नहीं यार, मैंने तो आया था ये करने, मुझे तो सबमिट करना है, मुझे करना है। तो वन नीड्स टू पेशेंट कि भाई ठीक है, वेदर ठीक हो जाए एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड देन यू कैन डू द सबमिट। सो कीपिंग योरसेल्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग नीड्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। मतलब वो ट्रैक पे आने से पहले यू शुड बी फोकस्ड। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार, धीरे धीरे स्टेप्स लेना है। इट शुड नॉट बी फास्ट, बट इट शुड बी स्टडी। एंड माउंटेनियरिंग इज वन थिंग कि जिसमें ऑफकोर्स फिजिकली एफर्ट्स तो चाहिए, बट मेंटल एफर्ट ज़्यादा चाहिए। या So there is a question. Tell us about the most thrilling experience ever. Most thrilling experience. Okay, so there is one expedition which I did. It was in Leh. It's called Stoke Kangri. Again, it's known as a trekkable peak. But still, in the last day, जो उसका बेस कैंप से सबमिट पॉइंट है, दैट इज़ रियली लेंदी, बहुत लंबा रास्ता है। तो उसके लिए यूजुअली हमें मिडनाइट स्टार्ट करना पड़ता है, 11 PM या 12 मिडनाइट ऐसे चालू करना पड़ता है। एंड सो आई डिड दिस इन सितंबर 2018। तो हम अपने बेस कैंप पहुंच गए थे, एक दिन वहाँ पे रेस्ट किए थे, फिर हमने रात में ये स्टार्ट किया था। तो हम 12 बजे निकले, हम चल रहे 6 लोगों की टीम थी। उनमें से एक ने डिसाइड किया कि नहीं हो पाएगा, ही रिटर्न।
बाद में आई थिंक 4 या 5 बजे थे, 5 बज रहे थे जब दो लोगों ने बोला कि यार आई मीन दे कांट गो फर्दर। तो इन टोटल 6 में से 3 थे जो वापस जा चुके थे और बाकी 3 बचे थे जो हम आगे चल रहे थे। तो अब ठंड थी पूरी रात से चल रहे हैं, थक चुके हैं। 6 बजता है, 6 बजे हम पहुंचते रिज पे। रिज इज दी लाइक दी बाउंड्री ऑफ अ माउंटेन इन विच वी हैव टू गो लाइक दैट। तो हम 6 बजे रिज पे पहुंचे। अब हमने क्या किया, जो हमारे साथ हमारा गाइड था, ही आस्क्ड अस कि रोप अप हो जाओ। रोप अप मीन्स कि हम 3 लोग हैं, हम तीनों ने रोप को अपने वेस्ट में बांध दिए सो दैट कोई एक थोड़ा डगमगाए तो बाकी 2 से संभाल पाए, बिकॉज वी आर वॉकिंग ऑन द रिज। एक साइड दिखाई है, दूसरी साइड दिखाई है, तो वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू कि भाई चलना है और एक दूसरे को संभालना है। लेकिन अब ऐसा हो चुका था ना कि भाई इतनी ठंडी हो गई है, हाथ पैर फील नहीं हो रहे, लाइक फिंगर्स एंड टोज, वी आर नॉट एबल टू फील इट। एंड वी नो कि ठीक है अभी सूरज आ जाएगा, आधा घंटे बाद 6:30 बजे सनराइज होगा, द वेदर विल गेट नॉर्मल, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा एंड देन वी कैन वॉक। हम चल रहे धीरे धीरे। अ पॉइंट कम जहाँ पे एक पत्थर है यहाँ पे और हमें थोड़ा सा नीचे उतरना है पहाड़ में और फिर ऊपर चढ़ना है। तो तब हमने क्या किया, हमने अपनी रोप खोल दी थी वहाँ पे कि भाई पहले क्रॉस हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई एक गिर रहा है तो सभी चले जाए। दैट वॉज समथिंग काइंड ऑफ डिफिकल्ट, जिसमें लगा कि यार ये तो मौत का खेल ना हो जाए, बट ठीक है हमने सेफ्टी के साथ एक दूसरे को संभालते हुए वी क्रॉस दैट। अगेन वी स्टार्टेड वॉकिंग और हमने देखा कि हमारे पीछे जितने ग्रुप्स आ रहे थे वो बहुत ही पीछे थे और हम सबसे आगे थे। तो 6:30 बजे एंड देन वी रियलाइज कि ठीक है इसके बाद भी हमें 1 घंटा और लग सकता है, और तब तक एनर्जी 0 हो चुकी थी। हमने सोचा एक बार रुक के कि यार क्या करना है, पहुंच तो जाएंगे क्योंकि हाँ ठीक है सबमिट करना है, बट देन वी नीड टू कम बैक एंड वापस आने में भी इतना ही टाइम लगेगा जितनी एनर्जी लगेगी। वी गेव इट अ थॉट एंड देन वी डिसाइडेड कि यार क्या करना है। सो एक बंदे ने बोला कि यार चलना है क्या वापस, तो बाकी दोनों ने तुरंत एग्री कर दिया कि हाँ चलो, क्योंकि पहाड़ तो वहीं पे रहेगा एंड वी कैन कम बैक अगेन एनी टाइम। लेकिन अगर हम इसी हालत में चलते रहे और कोई एक गिरा और हम 2 का काम रहेगा संभालने का, हम वो भी नहीं संभाल पाएंगे एंड ऑल 3 ऑफ अस विल गो डाउन, सो इट्स ऑफ नो यूज। देन वी टुक अनदर पाथ और फिर हम वापस नीचे गए। सो दिस वॉज थ्रिलिंग फॉर मी ऑफ कोर्स। आई मीन अगर मैं टॉप में जाती, मैं ये नहीं कहती कि मैं वापस नहीं आ पाती, आई कुड हैव, बट आई हैव नॉट टेकन दैट चांस, क्योंकि हमें मेंटली हम थक चुके थे उस टाइम एंड वी वर जस्ट पुशिंग आवरसेल्व्स फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट टू रीच द समिट। द सेम डे वी केम बैक टू बेस कैंप एंड देन आफ्टर दैट उसी दिन हम बेस कैंप से जो रोड का जो पॉइंट था जहाँ पे हमें गाड़ी मिलती, हम वहाँ तक भी चल के गए। तो दैट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। Oh, that's amazing. There is actually one more I can tell you. Yeah. Of course, tell me. Yeah, so there was one expedition which is in Uttarakhand. It's called, the peak name is Bandar Pooch. तो वहाँ पे it's a high altitude peak again, but it's a technical one. तो वहाँ पे हम बेस कैंप में थे, कुछ 1 हफ्ता रुके थे। 1 हफ्ता रुक के हम रोज थोड़े एक पॉइंट ऊपर तक जाते थे, थोड़ा राशन लेके ऊपर जाके आधे पॉइंट तक छोड़ते थे, फिर नीचे आते थे। सो अब एक दिन ऐसा था जब हमें एडवांस कैंप में शिफ्ट होना था, तो हमने टीम को 2 में डिवाइड किए। कुछ लोग थे, 3 लोग जो एक दिन चले गए थे एडवांस कैंप तक, बाकी के 3 लोग बाद में जाने वाले थे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि भाई हम तीनों में काफ़ी गैप आ गया था, और मेरे आगे एक बंदी थी जो जा चुकी थी, मेरे पीछे एक बंदी थी जो काफ़ी पीछे थी। तो कोई सेंस नहीं था कि अगर मैं उसका वेट करती, क्योंकि उसके साथ गाइड भी था। सो आई केप्ट ऑन वॉकिंग। तो वो पहाड़ पूरा सीधा है ना, और उसमें चलना है। आई रीच दैट पॉइंट। बाद में वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि ओके अब मुड़ के और आगे जाना है, एंड आई कुड नॉट सी एनी वन, आई कैन जस्ट सी द फुट मार्क्स एंड आई वॉज फॉलोइंग दैट कि ठीक है ये रास्ता है। अब वहाँ पे हवा चालू हुई, ब्लिजर्ड में मतलब ये होता है कि स्नोफॉल एकदम तेज से होती है और हवा आती है।
तो जो स्नो है वैसे चेहरे पे लगती है जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो। ठीक है, ठीक है। व्हाट आई कैन डू, आई नीड टू कंटिन्यू, आई कैन गो बैक टू द बेस कैंप क्योंकि इतना टाइम ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। सो आई वॉज वॉकिंग, अ पॉइंट केम जहाँ पे स्नोफॉल इतनी हो रही थी जो फुट स्टेप्स थे वो छुप गए, एंड आई कैन नॉट सी द रूट। ऑफकोर्स आई नो कि ठीक है ऊपर जाना है, बट जब कोई एक फुट मार्क्स बना के जाता है यू नो कि ठीक है तुम्हें वही वही पे पैर रखना है, रास्ता बना हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, हर एक जगह पे मुझे 3 बार पैर मारने हैं ताकि वो स्टेप बने, सो दैट आई कैन वॉक, एंड देयर वाज नो वन। और एक पॉइंट आया था जहाँ पे रोप भी खत्म हो गई थी, आई हैव टू वॉक विदाउट द सपोर्ट ऑफ रोप। आई मीन वो ऐसा पॉइंट था मुझे लग रहा है मैं रुक जाऊँ, उसके लिए रुक जाऊँ, कोई ऊपर से आ जाए, क्या करूँ, बट देयर वाज नथिंग, लाइक इट्स माई सेफ्टी, इट्स मी, आई हैव टू कीप मूविंग। धीरे धीरे कर करके आई रीच द टॉप, एंड देयर ऑल माई फ्रेंड्स आर वेटिंग, पूरा खाना वगैरह रेडी करके रखे थे उन्होंने। या एंड आफ्टर दैट ऑल्सो व्हेन वी रीच द एडवांस बेस कैंप, हम वहाँ पे 2 दिन तक रुके रहे, विच इज़ आई थिंक अ हाइट ऑफ 5900 मीटर और समथिंग, एडवांस बेस कैंप की उसके, विच इज़ अ लॉट ऑफ हाइट। एंड वहाँ पे 2 दिन तक इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि कंटिन्यूस स्नोफॉल था, हमारे आधे टेंट स्नो में डूब चुके थे और राशन ख़त्म हो रहा था क्योंकि हम बेस कैंप में भी ज़रूरत से ज़्यादा रुक चुके थे, एडवांस कैंप में भी 2 दिन रुक गए, एंड वी आर नॉट सपोज टू वेट सो मच इन एडवांस कैंप। उसके बाद आपको डायरेक्ट समिट कैंप जाना होता है एंड यू नीड टू हेड टुवर्ड्स समिट। सो वी हैड सम मैगी वगैरह, और तब ऐसी सिचुएशन आई थी कि अवलांच आ सकता है, बहुत स्नोफॉल हो रहा है, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फेल्ड एक्सपीडिशन ड्यू टू द वेदर एंड सम इश्यूज इन टीम। बट ठीक है, जो भी था, वी कैन नॉट फाइट विद द वेदर, so we need to We come cannot back. challenge the mountains. Yeah. So both of these experiences were thrilling, but unfortunately इसमें summit भी नहीं हुआ। That's okay. Mountains वहीं पे है, वापस जा सकते हैं. Exactly. So see you next time. Thank you for joining us. Thank you so much, Renu. Thank you, Travel for Official. We are glad to have you. Thank you so much. Bye. See you. Bye.